So if you guys are able to hear me and if you're able to see the chat, see the screen, just give me a quick yes on the chat box, please. So very good afternoon to Karan, Amir, Manju. There are a lot of highs and hellos. So very good afternoon to each one of you. Thank you so much for joining in. So yes, we are going to speak on the agenda, but before I start with the particular agenda, let me also understand that for all the people who have joined this particular webinar, they're able to hear my voice clearly and are able to see the screen. If it is a yes, just quickly use the chat box, give me some yeses, and then I'll start. Yes, thanks, Suraj. Thanks, Sonali, Himanshu, Ashish, Sonia, Shoaib, Suhail, Laiba. Thanks, everyone. I think there are a lot of Megha, Ritu, Akriti, Unesh, and a lot of other people. Fantastic. So, I'm sure, you guys would have received various SMSs, emails from us stating that here is a job opportunity inside India's largest private sector bank, which is called as the, HDFC Bank. So, yes, today we are going to speak about what is the job opportunity which you guys have got inside HDFC Bank. And if you guys are youngsters who are looking forward for your first job opportunity, then I am very sure that the opportunity which we are giving to you today is among the best rated job opportunities for the freshers in the country today. Because you are getting an opportunity to start working inside the banking industry with one of the largest private sector bank in the country. And what better option than to start with a bank like HDFC Bank? So, just let me also tell you what I am going to do for the next 15-20 minutes. Okay. So in the next 15-20 minutes, we are going to discuss what is the job opportunity which you guys have got inside HDFC Bank. Yes, the job opportunity in as it is showing on your screen, it is going to be of a virtual care officer. That's a VCO. It is a specialized position inside HDFC Bank. So, what is the job role of a virtual care officer? We are going to speak that in detail as I move forward inside the presentation. Now, who is this particular job opportunity for? Well, clearly, if you are somebody who is really passionate about joining the banking industry, if you want to get associated with the largest private sector bank in the country, which is called as the HDFC Bank. If you have not been getting lot many job opportunities, if you've not been able to crack a lot of interviews, then today can be your opportunity to start your career. One is you are starting your career, and that another important aspect is you are going to start your career in a prominent bank. Okay, so that is the opportunity for you guys. So stay tuned, guys. So I'm sure a lot of you guys would have joined this particular webinar, seeing that there is a fantastic job opportunity by your side. So yes, we are going to speak that in detail. Now, before I start talking about, the job presentation, the job profile which you guys have got, let me also understand from which locations have you guys joined in so that, it will help me value add in this particular presentation. Okay. So quickly tell me from which locations have you guys joined? So Prachi says she's from Delhi. Okay. Hi, Prachi. Good afternoon. Shruti is from Delhi. Okay. Pragati, Ishita, Fazil, Suhail, we have people from Delhi, Agra, UP. Okay. I think we have got a lot of people only from Delhi today. Yes. Hi, Ankit. Hi, Laiba. Hi, Yogeshwar. Hi, Vandana. Hi, Niraj. We have people from Ranchi, Ghaziabad. Okay. Well, I'm going to clearly tell you from which location do we have this opportunity for you guys. Now, before I also go forward, are you guys comfortable in English or you want me to run this in Hindi? Both are comfortable. Okay, I'm getting both Hindi in both languages, sir. ठीक है, जहां पर भी मुझे लगता है कि मुझे आपको हिंदी में बताना चाहिए, आई वुड यूज हिंदी एज अ लैंग्वेज.
but I will try and mix up both these languages. So I'm sure a lot of you guys should be able to understand this. Fantastic. तो मतलब ये जो सेशन है बिल्कुल उन लोगों के लिए जो उनका करियर बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में और आप लोग पैशनेट हो बैंकिंग जैसे बैंकिंग के वर्ल्ड में जॉब करने के लिए, देन ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको एक तरफ एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग एक करियर स्टार्ट कर रहे हो। दूसरा है कि आप लोग आपका करियर इंडिया, इस देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जिन्हें एचडीएफसी बैंक बोला जा रहा है, उनके साथ आपको एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है और वहां उनके ऑफिसेस में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप लोग यंगस्टर हो, एक पहला जॉब आप लोग अगर देख रहे हो और आपका जॉब अपॉर्चुनिटी एक ऐसे बैंक से जहां पर आप एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक में चालू कर रहे हो, तो आप लोग आपका कैरियर को एक सुपर स्टार्ट दिए हो। इफ यू गेट थ्रू दिस इंटरव्यूज, अनडाउटेडली आप लोग आपके करियर के लिए एक सुपर स्टार्ट दिए हैं। क्योंकि जो कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल काम कर रहे हैं, वो लोगों ने कभी पीछे मुड़ के कभी दूसरे इंडस्ट्री के बारे में सोचा नहीं। क्योंकि भले ही आप लोग 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख जो भी आपका इनिशियल सैलरी रहे, वो तो मैं आगे बताऊंगा कि आपका सैलरी क्या रहने वाला है। लेकिन अगर आप इसी इंडस्ट्री में मिनिमम 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल रहो, तो हमने ये भी देखा है कि भाई जो 10 साल काम कर रहे हैं या 8 8 साल के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों का सैलरी मिनिमम 14 से 15 लाख रुपए ऑलरेडी है साल का। और कोई 15 साल काम कर रहे हैं तो उन लोगों का सैलरी मतलब 20 से 25 लाख रुपए के करीब है। सो अनइमेजिनेबली, मतलब अगर आप लोग एचडीएफसी जैसे बैंक के साथ जुड़ोगे, इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। So with that note, let me also quickly start with what is it that we can look forward for as we move forward. So with this, a very good afternoon to each one of you. All right, and let me also introduce myself. My name is Santosh Kumar. I am the regional head with the Times Pro, which is a platform for youngsters like you to grab your first job opportunity. Now, what kind of a platform is that? I'm going to tell you forward. But before that, let me also tell you that in fact, I have been in the space of employability where we've been working with various corporates to give youngsters like you of their first job opportunity for the last 14, 15 years. Okay. Now that's where, we come in as an expert to you guys. Now, what is it that we do as part of Times Pro? We are a particular platform wherein we work with you youngsters as well as the corporates, and we act as a bridge between both of you in terms of getting your first job opportunity. With that, we run various skilling programs, various, we bring in various corporates inside this particular platform so that people are ensured that they are at a very good stage in terms of getting their job opportunity. ना हम लोग है कौन इन टर्म्स ऑफ हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, अगर आपको और विस्तार से समझना है, वेल, वी आर पार्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गाइस वुड नो व्हाट इज टाइम्स ऑफ इंडिया। हम लोग इस देश के सबसे बड़े मीडिया कंपनीज में से आते हैं, जिसको टाइम्स ग्रुप बोला जाता है। उन ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब उस कंपनी में हमारे कई ब्रांड्स हैं। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है, टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल है, फेमिना और फिल्म फेयर जैसे बड़े ब्रांड्स हम लोगों ने क्रिएट किया है इस देश में। बेनेट यूनिवर्सिटी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। और इसी ग्रुप ने एक ब्रांड क्रिएट किया है जिसको हम बोलते हैं आज टाइम्स प्रो, जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग स्पेशली बैंकिंग में, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपको अनडाउटेडली हेल्प करेगा, जहां पर आपको आपके पहला जॉब मिलने में आपको कामयाब कर पाएगा। ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में कैसे कैसे बैंक्स के साथ टाई अप करते हैं और किन किन बैंक्स के साथ, कौन से बैंक्स ऐसे हैं जो हमारे हायरिंग पार्टनर्स है आज के डेट पे, अगर मैं ये आपको बताऊं, तो आपके स्क्रीन में दिए गए हुए, ओके, आई थिंक वी हैव मिस्ड द स्लाइड। वेल, you talk about big brands like, HDFC, ICICI Bank, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे कई बैंक्स के साथ हम लोग कई प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं जिनको हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी फोकस्ड
प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं जहां पर लोग जो प्रोग्राम करते हैं उनको जॉब भी मिलता है। तो इस दौरान हमारे सी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 10 साल से इस कंट्री में फंक्शन कर रहा है, एंड फॉर दैट वी ऑल्सो बीन रिकग्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एन अवार्ड बिकॉज वी आर focusing on job focused programs, okay, which help people to get in their first job opportunity. तो पहली बात तो ये तो टाइम्स ग्रुप के टाइम्स प्रो के बारे में हो गया ना। फर्स्ट इज जैसे कि आप लोग अभी कई लोग हैं जो बैंक में जॉब चालू करना चाहते हैं, तो एज अ यंगस्टर बिफोर मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, एचडीएफसी जॉब के बारे में आपको बता दूं, उससे पहले ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि मतलब आप लोग जिस इंडस्ट्री को चूज कर रहे हो उस इंडस्ट्री में आगे के 10 साल, 15 साल, 20 साल क्या क्या विजन है, क्या देख रहे हैं, और मतलब रिसर्चेस क्या बता रहे हैं कि भाई आगे के दिनों में क्या होने वाला है इस इंडस्ट्री में। अगर आपको उसको एक ईगल्स आई में देखो और समझो कि भाई आगे के दिनों में बैंकिंग जैसे इंडस्ट्री में आप जैसे लोग अगर एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहे हैं और वो लोग एम्प्लॉयमेंट आज चालू करते हैं, तो उनको आगे के दिनों में क्या अपॉर्चुनिटी है। वेल, बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया का जो डोमेस्टिक बैंकिंग इंडस्ट्री है वो इस देश में, मतलब इस दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट होने वाला है। मतलब इंडिया का जो डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर है पूरे दुनिया में अक्रॉस ऑल द 190 प्लस कंट्रीज, इंडिया का जो डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर होने वाला है वो तीसरे तौर पे आने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगा अगले 20-25 साल में। और आप लोग उस ग्रोथ स्टोरी के भाग रहने वाले हो अगर आप लोगों को ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आगे के 20-25 साल में सिर्फ बैंक में एम्प्लॉयमेंट के तौर पे 1 करोड़ 20 लाख के से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट लेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में, बीएफएसआई सेक्टर में। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि इतने बड़े सेक्टर में अगर इतने लोग आज के डेट पे अगले 20 साल में और जॉब लेंगे, तो आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सीनियर हो, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप लोग कौन से पैमाने पे जा सकते हो सिर्फ इसी इंडस्ट्री को पकड़ोगे तो, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी विच यू गाइस हैव गॉट इनसाइड एचडीएफसी और इनसाइड द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ रही बात कि जहां जिस चीज के लिए आप लोग, कई लोग अभी इस पर्टिकुलर वेबिनार को ज्वाइन किए हो, एचडीएफसी बैंक के बारे में आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ बड़ा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, ठीक है। आई एम श्योर हर कोई जानता है कि एचडीएफसी बैंक का वैल्यू क्या है, उसके बैंकिंग का मतलब सर्विसेज कैसे हैं, उसका बैंकिंग का लोगों के प्रति प्रभाव और ट्रस्ट कैसा है, इसके बारे में आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ बड़ा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। तो इन सिंपल टर्म्स एचडीएफसी में अगर मैं आप लोगों को समझ में आए जैसा एक बात बोल दूं, तो आज के डेट पे 1,73,000 एम्प्लॉयज एचडीएफसी बैंक के लिए काम करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब क्या पैमाने पे ये पर्टिकुलर बैंक है, ठीक है। और ये बैंक इंडिया के बैंकिंग सिस्टम और इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे कितना कुछ प्रभावशालित है, ये आप लोग समझ सकते हो। तो दैट्स व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस इनसाइड एचडीएफसी बैंक। नाउ रही बात कि भाई आप लोगों के लिए एचडीएफसी बैंक में क्या अपॉर्चुनिटी है, ओके। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि यू गाइस हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट गेटिंग एसोसिएटेड विद एचडीएफसी बैंक एज अ वर्चुअल केयर ऑफिसर। वर्चुअल केयर ऑफिसर का मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैं अगर ग्रेजुएशन मतलब मैंने अगर ग्रेजुएशन किया है तो मतलब मैं क्या काम करूंगा, कहाँ रहेगा मेरा जॉब, कहाँ रहेगा, मुझे कहाँ जाकर कौन से ऑफिस में काम करना रहेगा। वेल, बड़ी सिंपल सा काम है। आपका जॉब रहेगा वर्चुअल केयर ऑफिसर। मतलब
सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताता तो फोन बैंकिंग का काम है आपका। फोन उठाना है, कस्टमर के साथ बातचीत करना है, उनका क्वेरी सॉल्व करना है, और आपका काम खत्म। ठीक है। तो फोन बैंकिंग का काम है। आपको लोकेशन जो है वो रोहिणी में रहेगा। ठीक है, दिल्ली में ही ये अपॉर्चुनिटी है। आपका काम क्या रहेगा, व्हाट विल बी योर जॉब डिस्क्रिप्शन, इफ यू लुक एट ऑलरेडी इट इज देयर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। ओके। आपको एक तो अगर आप ये ग्रेजुएट रहना चाहिए। अगर जो कोई भी ये पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई कर रहे हैं वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएट रहना चाहिए। और आपका क्या काम रहेगा, बेसिकली आपका काम रहेगा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, उनके क्वेरीज को सॉल्व करना, उनके क्वेरीज को मैनेज करना। ठीक है। हाँ, ये क्वेरी सॉल्व करते हुए, ये इंटरेक्शन करते हुए यू आपको टाइमलाइंस और एक डिफाइंड मतलब स्टैंडर्ड रहेगा, आपको उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने का काम है आपका। ठीक है, आपको सिखा दिया जाएगा कि भाई आपको ये प्रोसीजर, ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, और आपको उसी पॉलिसी, उसी प्रोसेस, उसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करते हुए इस काम को आगे लेके जाना है। ठीक है। मतलब आपके पास क्या रहना चाहिए, और इस काम करने के लिए बहुत आसान सा काम है। ठीक है, क्वेरी सॉल्व करना है आपका, आपको क्या काम करना है उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है। इस चीज के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, एक तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स रहना चाहिए, दूसरा चीज है कि आपके पास कन्विंसिंग स्किल्स रहना चाहिए। ठीक है, कि आपको पता है कि भाई ये कस्टमर के लिए अगर कुछ सही है तो आपको, अगर कस्टमर आगे नहीं समझ रहे तो उनको समझाने का तौर आपके पास रहना चाहिए जहां पर कस्टमर कन्विंस हो जाए। ठीक है, बस ये सिंपल सा एस्पेक्ट आपके पास रहना चाहिए। बेसिक बैंकिंग का नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। ठीक है। इस पर्टिकुलर काम के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, भल आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3 साल के एक्सपीरियंस से लेके जीरो एक्सपीरियंस तक कोई भी इस पर्टिकुलर काम को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स है, आप वेलकम हो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। भले ही आपका ग्रेजुएशन का स्ट्रीम कोई भी हो, कोई भी इस पर्टिकुलर जॉब रोल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। ठीक है। सर लोकेशन कहाँ है, रोहिणी में है। ठीक है। लोकेशन में कौन सा ब्रांच है, कौन सा ब्रांच का मैनेजर का नाम क्या है, वहां का टेलीफोन नंबर क्या है, ये पूरा हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है। अभी मुझे ये मत पूछो कि सर वहां पर कौन मैनेजर है, वहां पर क्या होने वाला है, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर है, आप लोगों को इसी प्रोसीजर के प्रति ही आपको प्रोसेस होगा। पहले आपका रेज्यूमे का किसको भेजना है, कैसे अप्लाई करना है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो कई लोग हैं, मतलब आई सी मोर देन 200 ऑट पीपल हु आर नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबिनार, जहां पर हम लोग आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। पहले तो इस पर्टिकुलर साइड के प्रति, इस पर्टिकुलर स्लाइड के प्रति आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये स्लाइड ये कहता है कि भाई आपका जॉब क्या है, आपका जॉब है वर्चुअल केयर ऑफिसर, फोन बैंकिंग ऑफिसर का काम है। आपका काम क्या है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, उनका क्वेरी सॉल्व करना। कस्टमर के पास अगर आपको, मैंने आपको कोई आपके एचडीएफसी बैंक के सर्विसेज है वो कस्टमर को बताना होगा, या इंश्योरेंस का सर्विसेज है, जो कुछ भी उनका सर्विस है वो आपको कस्टमर को बताने का काम है फोन के प्रति। फोन लेना है और आपका काम चालू करना है, ये आपका काम है। ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारा कॉलिंग भी रहेगा। शायद आपको आपके मैनेजर बोले कि भाई आपका ये प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, ये आपको कस्टमर को बताओ और इसके एक्टिवेशंस करो, तो सेल्स का काम हो सकता है। लेकिन ये आपका कंप्लीट जॉब जो है वो फोन के प्रति है। ठीक है। नहीं, ये जॉब सिर्फ और सिर्फ रोहिणी लोकेशन में दिल्ली में ही पॉसिबल है। अगर आप लोग वाराणसी से हो या जयपुर से हो तो आपको दिल्ली आने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राइट। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मैंने कहा, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला जॉब है, नॉन फील्ड जॉब है, नॉन सेल्स जॉब है। ठीक है। तो आपका जॉब जो है नॉन फील्ड और नॉन सेल्स जॉब है। बहुत कम लोगों को ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है। और अगर एचडीएफसी बैंक जैसे लोकेशन में आपको
HDFC बैंक जैसे कंपनी में आपको ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आंख को पट्टी बांधिएगा और सीधा साधा जाकर आप अप्लाई कीजिएगा इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि मार्केट में ऐसे जॉब कम मिलते हैं आज की डेट पे। ठीक है, इसके लिए आपका सैलरी क्या होगा, आपका स्टार्टिंग सैलरी क्या होने वाला है? आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 2.46 लाख रुपीस। Your CTC to start as a virtual care officer inside HDFC Bank is going to be 2.46 lakh rupees per annum. ठीक है, जैसे मैंने की कहा कि भाई आपका जॉब का रोल क्या है, आप रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ कॉम्पिटेंट एंड कंसिस्टेंट सर्विस इन लाइन विद सेट स्टैंडर्ड रिजल्ट इन एनहांस। से बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ। पहला सेंटेंस ये कहता है कि आपका काम है कि आप जो आपको दिया गया जॉब है वो आप डिलीवर करो कंसिस्टेंटली। जो आपको स्टैंडर्ड समझाया गया है उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए वो रिजल्ट्स लेके आओ। कस्टमर एक्सपीरियंस को और बैंकिंग के कस्टमर्स को ऐसा आप स्टैंडर्ड जो आपको सिखाया गया है वो स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करना है। ठीक है। इंश्योर आउट कॉलिंग इज डन टू कस्टमर फॉर क्लैरिफाइंग कस्टमर क्वेरीज। अगर कोई कस्टमर का डाउट्स है तो आप खुद कस्टमर को कॉल करोगे और उसके क्वेरीज को रिजॉल्व करोगे। ऑन ट्रांजैक्शन डिक्लाइन ड्यू टू कार्ड कंट्रोल नॉट enabled, रिन्यू अपग्रेड कस्टमर फॉर वेलकम कॉल फीचर इन्फोर्स। मतलब बैंकिंग के प्रोसेस में आपको कई प्रोसीजर्स रहेंगे। मतलब किसी का कुछ ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया, उसको कॉल करने का काम रह सकता है। किसी का कुछ ट्रांजैक्शन का मतलब या कार्ड का रिन्यूअल या अपग्रेडेशन करना है, उसका कॉलिंग आपको करना रह सकता है। किसी कार्ड का फीचर एक्सप्लेन करने के लिए आपको कॉलिंग करना रह सकता है। ये काम आपका होने वाला है बैंक के अंदर। ठीक है। आपको एक बेंचमार्क सेटअप करना है जहां पर आप एक एब्सोल्यूट सर्विस एक्सपीरियंस दो। आपका एक क्वालिटी मेंटेन करो, आपको जो सिखाया गया है पैरामीटर्स पे आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो। ये आपका हिसाब किताब होने वाला है आपके काम का। ठीक है। जीरो डिफेक्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग फॉर ऑल कस्टमर रिक्वेस्ट। जो भी कस्टमर का रिक्वेस्ट है उस पे जीरो डिफेक्ट्स, मतलब ऐसा कोई आप यू नो ऐसा कोई आप एक्सपीरियंस ना दो कि भाई कस्टमर जो है वो नाराज हो जाए। ठीक है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है, तो आपको जीरो डिफेक्ट प्रोसेसिंग मेंटेन करना है। ठीक है। टू इंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट रेजोल्यूशन, उनका जो भी है कंप्लीट रेजोल्यूशन देना है और एक्यूरेट रहना है आपके टाइमलाइंस पे भी। इसके हिसाब से आपका ऑडिट होगा, एसक्यू गाइडलाइन मेंटेन करना है आपको। सो ये आपका काम होने वाला है। सर आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम, सो अभी तक जो कुछ भी मैं आपको समझाया हूं, मतलब जो आपका जॉब रोल है, आपका सैलरी है, जो आपके जॉब के बारे में जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है। सो ये सब मैं आपको समझाया हूं। इसके बारे में अभी तक आपको कोई भी डाउट हो ना, आप लोग अभी चैट बॉक्स यूज कर सकते हो और मैं आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो मुझे कोई लिखता है आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैन आई अप्लाई? ग्रेजुएटेड फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करो प्राची, आई एम नॉट श्योर, यू जस्ट अप्लाई, आवर कोऑर्डिनेटर्स विल चेक विद द बैंक एंड गेट बैक टू यू। सर व्हाट विल बी द इन हैंड सैलरी? देखो आपका सीटीसी जो है वो 2.4 है, तो आप टैक्सेस का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आप टैक्सेस कट करके आप कैलकुलेशन कर ले सकते हो। वैसे भी 2.4 पे ज्यादा कुछ टैक्स तो है नहीं। आपका मतलब जो भी पीएफ अमाउंट है वो कट करके आपके हाथ में आएगा। वो पीएफ अमाउंट भी आप ही को आएगा, जैसे आप कंपनी छोड़ते हो तो आप ही को आएगा, तो उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ग्रेजुएशन अपियरिंग और एलिजिबल और नॉट, ग्रेजुएशन अपियरिंग नॉट एलिजिबल, जो ग्रेजुएटेड है सिर्फ वही एलिजिबल है फिलहाल वक्त। सर ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो चलेगा क्या वंदना? आई हैव टू चेक बैक, आप भी आप अप्लाई कीजिएगा, लेट्स दे हैव टू चेक विद द बैंक। एज लिमिट तो यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, वो लोग ने 0 to 3 years एक्सपीरियंस बोला है, एज लिमिट तो दिया नहीं है, आप लोग अप्लाई करो। ऑफिस टाइमिंग जो भी बैंक का टाइमिंग है वही रहेगा आपका। अप्लाई कैसे करें ये तो मैं आगे बताऊंगा आपको।
अगर किसी का ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप ग्रेजुएशन खत्म कीजिएगा, उसके बाद आपको ये हेल्पफुल रहेगा। हाउ कैन वी अप्लाई सर, आई एम टेलिंग यू। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई अप्लाई, आई एम गोइंग टू टेल यू। आगे मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। पहले तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत क्लियर किया है कि भाई अभी तक जो कुछ भी मैं समझा हूं उसके बारे में आपको कोई डाउट है तो आप लिखिएगा, अदरवाइज क्लियर बोल के चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आगे बढ़ूंगा। ऑन रोल जॉब है ये, इट्स एन ऑन रोल जॉब। यस, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल को अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली में कहीं और लोकेशन अवेलेबल है नहीं, सिर्फ रोहिणी में अवेलेबल है ये वाला पोजीशन। सिबिल भी क्लियर रहना चाहिए आपका, वो तो अगर बैंक में आप अप्लाई कर रहे हो तो सिबिल तो क्लियर रहना चाहिए। नियर में लोकेशन लिख सकती है क्या, सिर्फ रोहिणी में मिलेगा लोकेशन तो। सर व्हाट इज द करियर ग्रोथ इन दिस जॉब, देखो एक बात बहुत सिंपल है। अगर आप लोग ये वाला पोजीशन से चालू कर रहे हो तो 5 साल में आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। वेल आप लोग अभी एसोसिएट पोजीशन में ज्वाइन कर रहे हो, आप लोगों को मैनेजर तक का पोजीशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा 5 से 7 साल के टाइम पीरियड में। अगर आप मैनेजर बनते हो तो आप लोगों का मिनिमम सैलरी रहेगा 15 से 16 लाख रुपए। आज की डेट में जो मैनेजर है उनका सैलरी अराउंड 15 लाख रुपए है दिल्ली में। और अगर यहां से अगर मैं 5 से 6 साल या 7 साल भी लगा लूं, 2030-31 तक अगर आप लोग हो तो आपका सैलरी मिनिमम 18 से 19 लाख रहना चाहिए। सो दैट इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। सो ये कुछ ऐसा वैसा काम नहीं है, कोई भी बैंकिंग में ये वाला प्रोसेस रहेगा। मतलब इस देश के कोई भी बड़े बैंक में ये ऐसा प्रोसेस तो है ही। और आपका एक्सपीरियंस अनडाउटेडली इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए काम आएगा। तो इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर। ये तो मैं तो सिर्फ आपको 5 साल या 7 साल का व्यू दिया हूं। और जैसे जैसे आपके हर साल बढ़ते जाएंगे इसी बैंक में, आप लोग मेरे से ज्यादा समझ जाओगे कि बैंक में क्या क्या होता है। और हाउ मेनी इयर्स प्रमोशन, सी प्रमोशंस आपके परफॉर्मेंसेस के ऊपर, आप कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, कैसे एडियर कर रहे हो, इसके ऊपर बेसिस होता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर 1.5 साल 2 साल में आपको एक प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप अच्छी परफॉर्मर हो तो। सुहेल टारगेट बेस तो नहीं है, देखो इसमें मैंने क्लियरली कहा है कि भाई नॉन सेल्स जॉब है। फिर भी आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्या आप लोग कभी सेल कर सकोगे तो आपका आंसर पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। ठीक है, अगर सेल्स का भी काम है, देखो प्रोसेस तो वही है, आपको कस्टमर के साथ बात करना है। ठीक है, फिलहाल वक्त वो लोग ने जो प्रोसेस बोला है उसमें सेल्स नहीं है, वो तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी खुद आपको बताया है कि सेल्स नहीं है, टारगेट्स नहीं है। ठीक है, बट यस अगर इंटरव्यूज में अगर वो लोग पूछेंगे तो आप लोग इसमें मना मत करो, यू गिव योर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सेल्स। फिर आगे देखो, क्योंकि पोजीशनिंग तो यही ओपन है अभी फिलहाल। वेरी नाइस करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यस। ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे आगे अपन आगे और बातचीत करते हैं और आगे मैं और क्वेरीज सॉल्व करूंगा। नाउ द पॉइंट इज, आप लोग इसको प्रोसेस क्या होगा, हाउ आपका व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर यू टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। पहला स्टेप ये है कि आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा, मतलब आप लोग आपका रेज्यूमे हमें भेजोगे, हम लोग आपका रेज्यूमे को चेक करेंगे, आपका एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसके बाद हम आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा टाइम्स प्रो के तरफ। ये जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा ये फर्स्ट राउंड होगा। उसके बाद सेकेंड राउंड होगा आपका फाइनल राउंड, जो एचडीएफसी बैंक के ब्रांच के अंदर होगा। मतलब आपको एचडीएफसी के ब्रांच के अंदर बुलाया जाएगा और वो वाला इंटरव्यू होगा। जैसे आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका सिबिल और डीडीपीयू चेक किया जाता है। फॉर इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स एट एचडीएफसी पोर्टल। ठीक है, बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका सिबिल चेक किया जाएगा। सिबिल चेक करने के बाद आपका क्लियर है सिबिल, तो आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है जहां पर कि हम लोग बोलते हैं कि भाई आपका इंटरव्यू हो गया है और अभी आपका जॉब एचडीएफसी बैंक में गारंटीड है। आपका जॉब एज अ वर्चुअल केयर ऑफिसर एचडीएफसी बैंक में रोहिणी लोकेशन में आपका जॉब गारंटीड है। अभी आप
ये ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा, और जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म होता है आप लोग एचडीएफसी बैंक डायरेक्ट ज्वाइन करोगे। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये आपका ट्रेनिंग रहेगा, ये ट्रेनिंग पीरियड ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा। ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, एक बार आपका जॉब कंफर्म हो जाता है, आपको एचडीएफसी बैंक से लेटर मिल जाता है कि भाई आपका जॉब गारंटीड है, अभी आप टाइम्स प्रो से ये ट्रेनिंग खत्म करो। तो फिर आपको ये ट्रेनिंग खत्म करना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग का फीस होगा 15,000 रुपये प्लस टैक्स। जो कुछ भी आप लोग एज अ वर्चुअल रिलेशन, वर्चुअल केयर ऑफिसर, जो कुछ भी आपका काम रहेगा उसके बतौर आपको ट्रेनिंग किया जाएगा। उसका ट्रेनिंग जो है वो टाइम्स प्रो, क्योंकि टाइम्स प्रो एचडीएफसी बैंक का रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पार्टनर है, तो उसका ट्रेनिंग जो है वो टाइम्स प्रो करेगा। ट्रेनिंग के लिए आपको जो फीस है वो 15,000 रुपये प्लस टैक्स आपको भरना पड़ेगा। जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, आप लोग सीधे एचडीएफसी बैंक ज्वाइन करोगे। ये होता है प्रोसेस। ठीक है सर, मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है क्या? सर सर आपने सब, ओके। सी, अगर आप लोगों को लगता है कि ये पर्टिकुलर जॉब आप लोगों के लिए है, आप लोग पहले अप्लाई करो। ठीक है, इसका क्योंकि इंटरव्यू भी आपको एचडीएफसी बैंक में ही देना है। ये जो आजकल क्या है कि एचडीएफसी बैंक के पास उतना टाइम नहीं है कि वो लोग खुद ट्रेन करें। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा ओपनिंग्स है, और ये लोग बहुत हाई लेवल पे ये लोग मतलब लोगों को हायर करते हैं। तो ये लोग क्या है, ट्रेनिंग पार्टनर्स को लगाते हैं। ठीक है, उस ट्रेनिंग पार्टनर्स के थ्रू एक बार जब जॉब क्लियर हो जाता है, तभी आपको मतलब ये जो फीस भरना है, मतलब इसमें कोई ये है एस्पेक्ट है ही नहीं। आपको एचडीएफसी से भले ही लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है, उसके बाद ही आपको 15,000 प्लस टैक्स पे करना है। वो तो आपका एक दिन एक महीने की सैलरी से भी कम है, वो तो आप आराम से मिल जा सकता है आपको। ये आप डायरेक्ट अगर जाओगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं रहेगा। बट अगर ये चैनल के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए आपको ये फीस भरना है, क्योंकि हम लोग को भी एक कॉस्ट लगता है आपको ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग अराउंड से 7 से 10 दिन का ट्रेनिंग होगा आपके पास। यस। देखो एक बात समझ जाओ, आप लोग पहले एचडीएफसी बैंक में इंटरव्यू दोगे, एचडीएफसी बैंक एक बार आपको सिलेक्शन देगा, और एचडीएफसी बैंक पहले आपको जब सिलेक्शन का लेटर ऑफ इंटेंट देगा, जब ही हम लोग आपसे फीस लेंगे। मतलब आपका जॉब जब गारंटी हो जाता है, तभी आपको फीस देना है, जब तक आपको कोई फीस नहीं पे करना है किसी को भी। यस एब्सोल्युटली विशाल, आपको पेमेंट करने के बाद ही, आई मीन जॉब गारंटी होने के बाद ही आप पेमेंट करोगे। नहीं हिमांशु, वो नहीं पॉसिबल है। देखो आप लोग एक बात समझ जाओ, हम लोग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हम लोग एक पहला नौकरी लगा सकते हैं। हम लोग आपका पहला नौकरी लगाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म में बुला रहे हैं। हम लोग खुद आपको एचडीएफसी बैंक में ब्रांच में इंटरव्यू करा रहे हैं, खुद हमको आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, और ट्रेनिंग के बाद जॉब मिलने के बाद ही फीस ले रहे हैं। आप बोलोगे सर मेरा फर्स्ट मंथ सैलरी के बाद दे दूंगा फीस, सेकेंड मंथ के बाद दे दूंगा फीस, भैया हम लोग उतने सी वो तो वर्किंग नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, हम लोग आपको जॉब देने के बाद आपका फीस ले रहे हैं। ठीक है, तो वो सिंपल, और ये तो जॉब तो ऑन रोल जॉब है, नॉन सेल्स जॉब है। आपको 2.46 का सैलरी मिल रहा है, उसमें आपको आपका एक महीने का सैलरी से कम आपको ट्रेनिंग फीस है। एक बार दे दो, आपका पहला मंथ होते कि आपको सैलरी मिल जाएगा, तो इसमें आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं है। ईएमआई ऑप्शन आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको टच बेस करेंगे, तो आप उन वो लोग आपको दे सकते हैं ईएमआई अपॉर्चुनिटी, वो भी है। नहीं तो क्रेडिट कार्ड ले लो, स्वाइप करो 15,000 रुपये, सिंपल सी बात है। नहीं, कोई नियरेस्ट वाला ब्रांच नहीं मिलेगा, सिर्फ रोहिणी में ओपनिंग है, तो रोहिणी बैंक ब्रांच वाला ही ऑप्शन है। ओके। सी, एचडीएफसी बैंक कुछ ऐसा वैसा बैंक है नहीं। ठीक है, तो वो लोग भी जानते हैं कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप क्या है, टाइम्स ग्रुप क्या है, ये प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको क्लियर है, आप पहले एचडीएफसी बैंक में इंटरव्यू दोगे, वहां पर आप सिलेक्ट होगे, आपके ईमेल आईडीज पे आपके लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा एचडीएफसी बैंक के बाद, उसके बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है।
हाँ, ये तो ओपनिंग जो है, ये जो प्रोसेस है एचडीएफसी बैंक का, ये एक ही जगह होता है। और ये प्रोसेस जो है रोहिणी से होगा। तो आपको तो रोहिणी काम करने के लिए आना ही पड़ेगा। इफ सिविल इज बैड देन इट विल नॉट बी पॉसिबल। हाँ जी, अगर आपने कभी स्विगी में कुछ ट्रांजैक्शन किया और पेमेंट नहीं किया, या आपने कभी जिंदगी में कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया, उसका पेमेंट नहीं किया, या आपने कभी लोन लिया किसी भी बैंक से और आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो आपका सिबिल इफेक्ट होता है। अगर आपका सिबिल इफेक्ट हुआ है, तो आप लोगों को इधर जॉब मिलना गारंटीड नहीं है, मतलब वो पॉसिबल नहीं है एचडीएफसी बैंक में काम मिलना। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को करना है कि आप लोग अभी आपके स्क्रीन में दिए हुए नंबर, संजू शर्मा के फोन या व्हाट्सएप नंबर पर आपका रिज्यूमे भेजना है। जो कोई भी आज के 6 बजे तक जो कोई भी उनके रिज्यूमे भेजेंगे, उनका प्रोसेस हम लोग एचडीएफसी बैंक के लिए करेंगे। ऑटोमेटिकली हमारा टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगा और आपको और विस्तार से समझाएगा, प्रोसेस समझाएगा, नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कब होगा, आपका नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक में कब आना है, कैसा ड्रेस होना है आपको, इस चीज के लिए भी आपको सेपरेट ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंटरव्यू में कैसे बातचीत करना है, इस चीज के लिए भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और फिर आप लोग एचडीएफसी बैंक जाओगे। सो बहुत सिंपल है कि अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप लोग आपकी स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे कॉल करें, इसका स्नैपशॉट ले लें। आपका रेज्यूमे प्लीज सेंड इट टू 7221085880। ओके, 7221085880। ठीक है, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग आपका रेज्यूमे भेजिए। आज शाम 6 बजे तक ये अपॉर्चुनिटी है रहेगा आपके पास। अराउंड 7 से 7 to 10 डेज विशाल। ट्रेनिंग रहेगा 7 से 10 डेज, 7 से 10 दिन तक का ट्रेनिंग रहेगा। वो आप लोग बताएंगे एक बार आप सिलेक्ट हो जाओगे तो। यस, फ्रेशर के जैसे ही मिलेगा जॉब आपको पूजा। ठीक है। सो आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड ऑल द डाउट्स। अगर स्टिल आपके पास कोई जवाब, मतलब कोई सवाल या जवाब है और आपको कुछ कहना है, तो आप लोग प्लीज आपका चैट बॉक्स यूज कीजिएगा और पूछिएगा। मैं अवेलेबल रहूंगा अगले और 5-10 मिनट। हाउ मच डू वी हैव टू पे? 15,000 प्लस टैक्स, हीना, हीना खन्ना। 15,000 प्लस टैक्स इज व्हाट यू हैव टू पे। वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला जॉब है जब मंजित। 15,000 प्लस टैक्स मतलब 15,000 प्लस 18% टैक्स, 17,700 आपको पे करना होगा। सर अभी लेफ्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि जॉब पर। हाँ, अभी आप अगर ये स्नैपशॉट कर लिया गया है, आपको अप्लाई करना है, तो आप लोग यस यू कैन गो हेड। ऐसा तो नहीं होगा कि पैसे लेके जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पहले एचडीएफसी बैंक खुद जाओगे, आप खुद मैनेजर से बात करोगे, खुद इंटरव्यू दोगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। पहले आपके हाथ में लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा, उसी के बाद ही पैसे आपको पे करना है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ ऐसा वैसा कंपनी नहीं है कि मतलब वो ऐसे पैसों से जिए। एंड 5 डेज वर्किंग है एंड 7 डेज जॉब करना होगा सर। सी सिंपल सा बात है, बैंक के जो भी वर्किंग डेज है उसी दिन आप लोग काम करोगे। बैंक्स जो है सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे मानता है, तो आप लोगों का भी हॉलीडे होगा। ठीक है। यस हिमांशु, यू हैव शेयर्ड योर सीवी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू। सो सिंपल, लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं गैस, सी एज अगर आप लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हो, तो ऐसा वाला ऑपरेशन जॉब, मतलब
नॉन सेल्स नॉन फील्ड जॉब बहुत कम लोगों को मिलता है। इसको आप यूटिलाइज कीजिए। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर योर करियर इफ यू आर अ फ्रेशर। ओके। और रही बात आप लोग के फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड जर्नी। आप लोगों को एचडीएफसी बैंक के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। यू देर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इनसाइड एचडीएफसी बैंक। आप लोग देख ही रहे हो दिन प्रतिदिन वो कैसे बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली देर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। ठीक है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड स्टार्ट एंड अ स्टार्ट विथ फ्लाइंग कलर्स एज अ फ्रेशर, दिस अपॉर्चुनिटी इज अ फैंटास्टिक जॉब अपॉर्चुनिटी। सो गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दिस। पहले तो आप लोग अप्लाई करो, पैसे भरने का वो पूरा बाद में सोचेंगे। पहले आप अप्लाई करो, पहले आपके हाथ में एक लेटर ऑफ इंटेंट आ रहा नहीं देखो, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो। मुझे पता है जिसके हाथ में लेटर आ जाएगा वो कंपलसरी ज्वाइन करेगा। बिकॉज हम लोग ये हर महीना रन करते हैं, हमारे पास जितने भी लोग एक बार इंटरव्यू देके लेटर हाथ में आता है पूरे के पूरे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सबको पता है इस ऐसे जॉब का इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो अभी जो हमारे पास ओपनिंग्स है ये सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है। ठीक है। जनरली तो हमारे पास 10-15 ओपनिंग्स आते हैं, ये बार 30-40 ओपनिंग्स आए हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आपको इसको कैसा यूटिलाइज करना है। यस पूजा, आपके पास हाथ में ऑफर लेटर होगा, लेटर ऑफ इंटेंट होगा, तभी आप लोग फीस भरोगे। सर अगर सेलेक्ट हो गए तो ज्वाइनिंग इसी मंथ हो सकती है। अगर सेलेक्ट हो गए तो ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ रहेगा इमीडिएटली, यही मंथ भी, ये मंथ एंड भी रह सकता है। नहीं, आई थिंक मैक्सिमम आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग रहेगा। 17,700 सुहेल। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश बोथ, दोनों भी रहेगा। शुभम ओनली वन लोकेशन, हाँ जी रोहिणी में ही लोकेशन है। ये प्रोसेस जो है रोहिणी से ही चलता है। वर्किंग आवर्स जो भी बैंक आवर्स है वही रहेगा, आपका प्रोसेस के हिसाब से आपको आवर्स दिए जाएंगे। Okay. So I think I've answered all your queries, guys. Okay. Thank you so much for joining. All the best to each and everybody. Let me again repeat, this is a fantastic job opportunity for freshers. अगर आपको इस पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करना है, स्क्रीन में दिए गए हुए नंबर मिस्टर संजू शर्मा को आप आपका फोन आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका रिज्यूमे भेजिएगा, आज शाम 6 बजे तक हम लोग आपके रिज्यूमे के प्रोसेस करेंगे। Okay, so thank you so much. All the best to each and everybody who have joined in. Take care of yourself. So सैलरी का एक बार फिर से बता दो, सैलरी रहेगा 2.45 lakhs पर एनम। रिलोकेशन का कुछ कंपनसेशन, रिलोकेशन का कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ये आपका फ्रेशर है तो आपको फ्रेशर के तौर पे 2.45 लाख ही मिलेगा। रेज्यूमे आप लोग सेंड करोगे, आज शाम तक आपको रिस्पांस मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक मैक्सिमम। लोकेशन लोकेशन रोहिणी में है, दिल्ली में है, वो एक ही लोकेशन आपके पास है अवेलेबल। सो आप लोग अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, डू वेल इन योर लाइफ, टेक केयर, टाटा बाय बाय। सीवी आज शाम के 6 बजे तक आपको सेंड करना है। ऑलराइट होस्ट, थैंक यू सो मच, आई थिंक वी आर डन फॉर द सेशन।